محترم ناظرین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ سید امین القادری کے ایک خاص بیان پر جو دو حدیثوں کو بیان کیا ہے، اور انہی دو حدیثوں پر یہ پوری 15 منٹ کی تقریر ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگ سنیں گے تو ایمان تر و تازہ ہو جائے گا، اور سید صاحب جو ہے اس تقریر کو کرتے ہوئے رو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ پوری تقریر کو پوری سنیں، اور میرا یقین ہے کہ ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہم اسی طریقے سے جو ہے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لاتے رہتے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیے ویڈیو کو سن لیتے ہیں۔ حدیث سنیے، اس کے راوی بھی انوکھے راوی ہیں۔ آج انوکھے راویوں کی روایت پیش آ رہی، جو جلدی روایت نہیں کرتے ان کی روایتیں یاد آ رہی ہے۔ کون ہے؟ رسول اللہ کے دوسرے جانشین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین سیدنا عمر ابن خطاب اس حدیث کے راوی اللہ ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، راوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے ماں باپ قربان، کون فاروق اعظم؟ جبریل علیہ السلام کہا کرتے تھے اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی اللہ فضیلت ختم اکبر۔ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اب وہ فاروق اعظم روایت کرتے کہ میں حضور سے ملنے گیا۔ سن لیجئے، اللہ کو منانا کتنا آسان، سب سے آسان اللہ کو منانا ہے۔ میں تقابل نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو منانے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اللہ والے بن جاؤ، بہت بڑا نصاب نہیں اللہ والے بننے کا۔ اس کے در پہ آ جاؤ یہ کہہ کہ میں برا ہوں، بس رو گڑ گڑاؤ، اپنا بنا لیتا ہے۔ بے شک اللہ جتنی جلدی اپنا بناتا ہے کوئی نہیں بناتا، اور اللہ ایک بار جس کو اپنا بناتا ہے پھر اس سے بے رشتہ نہیں شک توڑتا۔ اللہ کی شان ہے، وہ کسی سے رشتہ نہیں توڑتا۔ ہاں ہاں، وہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، دیکھو ہائے، حضور سے کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب، لوگ میرا پتہ پوچھتے ہیں نا آپ سے، توجہ ہے، اے میرے حبیب، سب کی قدر کی، اللہ کی قدر نہیں کی، بہت معافی کے ساتھ، بہت معافی کے ساتھ۔ لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں پیروں کی برائیاں کر رہا ہوں، لعنت ہو اس شخص پہ جو پیروں کی برائیاں کرے، سچے بے پیروں کی شک برائیاں۔ میں صرف سمجھانے آیا ہوں، ہم خود پیر رکھتے ہیں بھائی پیروں کی، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، شکوہ ہے آپ سے، جتنی عزت آپ اپنے پیر کی کرتے ہیں اتنی عزت شاید آپ اللہ کی نہیں کرتے۔ صحیح بات ہے بھائی، مجھے شکوہ ہے، مجھے پیروں معلوم کے ہے، پیچھے ہے لوگ۔ مجھے شکوہ ہے، جتنی عزت آپ اپنے پیر کی کرو، پیر کی میں منع نہیں کرتا، صحیح لیکن بات ہے، جتنی عزت پیر کی کرتے ہو پیر کی عزت کرو، اتنی کون عزت منع آپ کر رہا ہے؟ اللہ کی نہیں کرتے۔ میں سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات بتاؤں میرے بھائی، میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے، میری آنکھوں سے، محمد علی بھائی میری آنکھوں سے دیکھا، اس چھوٹی عمر نے بہت تجربے کیے۔ اگر مرید مالدار ہے، مالدار کے بعد مرید غریب ہو گیا، پیر صاحب اس کے گھر رکتے تھے، رکنا چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ وہ غریب ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ میں سچے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو تمہیں لوٹنے آتے نا، تمہارے دلوں کی بجائے تمہاری جیب پر جن کی نظر ہوتی، ان کی بات کر۔ لیکن تم اللہ سے زیادہ، وہ اللہ جس نے تمہیں زندگی دی، سب کچھ دیا، اس سے پیار کرنے کی بجائے اس سے زیادہ پیار آپ اپنے پیر سے کہیں کر رہے ہو۔ آپ دلیل سن لیں، اگر میں مجرم ہوں آپ مجھے سزا دیں، میں بہت سادہ آدمی، میں کوئی محقق مفکر علامہ کچھ بھی نہیں، میں غوث پاک کے در کا فقیر، بے ہنر فقیر، ان کی بارگاہ کا سگ، بے ہنر سگ، سگے سگانے آل محمد، میری کوئی اوقات نہیں، لیکن اپنے پیر سے جتنی محبت کرتے اتنی اللہ سے نہیں کرتے۔ اگر آپ کے پیر نے یہ چادر دے دی، چلیں سمجھ لو میں آپ کا پیر ہوں نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کٹہرے میں خود کو کھڑا کروں گا تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہوگا، ہے نا، ہم ہی سب سے برے ہیں۔ یہ چادر میں نے کسی کو دے دی، توجہ، یہ چادر مجھے یقین ہے تم پر، یہ چادر تم سر پہ رکھو گے، چومتے ہیں لوگ اس چادر کو، ہم اس سے منہ ہاتھ پوچھتے ہیں لیکن لوگ چومتے ہیں، ان کی محبت ہے، ان کی محبت ہے۔ دے دوں ٹوپی، دے دوں امامہ، دے دوں، کچھ لوگ تو بغیر اجازت کے میرا امامہ لے کے بھاگ جاتے، ٹوپی بھی لوگ لے کے۔ ایک جگہ میں گیا الہ آباد میں، میرے سر کا امامہ بھی لے گئے، ٹوپی بھی لے گئے، میرے جوتے بھی لے گئے۔ پیار اتنا ہے، مجھے ناراضگی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ میری آستین پھاڑی،
आस्तीन फाड़ कर भी ले गए। मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, इलाहाबाद वाले गवाह, वहाँ सैयद बादशाह रहते हैं, सैयद नजीब, और उनको सैयद सद्दाम कहते हैं, इस वक्त मिस्र में अजहर में पढ़ रहे, उन्होंने बुलाया था। इतना प्यार करते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई शिकवा नहीं है। मुसाफा सिर्फ करने के लिए, छूने के लिए नाखून तक मारे, ये भी करते हैं लोग, करते हैं, मुझे कोई शिकवा नहीं, उस पर भी शिकवा नहीं, चलिए आपका प्यार है, लेकिन मुझे शिकवा इस पर है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने चादर दी, इसको सर पे रखोगे, फिर खुशबू लगा के तिजोरी में रखोगे, और उसके बाद अपने बच्चों को कहोगे सैयद की चादर है, मरूं तो इसको कफन में ले जाऊंगा। मेरे दिए हुए तोहफे की कितनी कदर की, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। लेकिन मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि जो तोहफा मैंने तुम्हें दिया था, तुम्हारे पीर ने दिया था, टोपी की शक्ल में, चादर की शक्ल में, किसी भी शक्ल में दिया था, तुमने उसको सर पे रखा, तिजोरी में रखा, उसकी इज्जत की, उसकी जियारत की, और उसको तुम कब्र में ले जाओगे। पीर के दिए हुए तोहफे की तुम इतनी इज्जत कर रहे हो, अल्लाह ने भी तो तुम्हें तोहफा दिया ना, अल्लाह ने भी तो सही बात है, बेशक। एक बात कह दूं फिर, अल्लामा जमील साहब जैसे लोग मिंबर पे हैं, मैं सबको नहीं जानता, ये अल्लाह वाले, ये हक सुनने के और हक कहलवाने के आदी है। भाई मेरी चादर तुम्हारे कब्र में काम आएगी, कोई गारंटी नहीं है, सही बात है। मेरी दी हुई टोपी तुम्हारी कब्र में काम आएगी, कोई गारंटी नहीं। मेरा दिया हुआ तोहफा तुम्हें कब्र में काम आएगा, कोई गारंटी नहीं। मुसलमानों, तुम्हें शर्म में डूब मरना चाहिए। सबसे ज्यादा अल्लाह रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए, बाद में सबकी होनी चाहिए। अगर तुम अल्लाह रसूल को से ज्यादा किसी को चाहते हो, तो कहीं ना कहीं तुम शिर्क की तरफ जा रहे हो। सही बात। शिर्क सिर्फ बुतों को पूजना नहीं है, जो चीज का हकदार अल्लाह है, वो हक किसी और को देना, ये भी बेशक सही बात है। ये भी तो शिर्क है। मैं तुम्हें मुशरिक कहने नहीं आया, ये फैसला उलमा करेंगे, मुफ्तियान किराम करेंगे, आपको बताएंगे कि जिस चीज का हकदार अल्लाह है, वो हक आप किसी और को देंगे, तो ये शिर्क नहीं है। सिर्फ बुतों के आगे हाथ जोड़ना ही शिर्क है। शिर्क के बहुत सी अकसाम है। मुझे बताओ, मेरे दिए हुए तोहफे की तुमने इतनी कद्र की, इतनी इज्जत की। एक तोहफा तो अल्लाह ने भी दिया था, और कैसे दिया था, कैसे दिया था? उस तोहफे के लिए अल्लाह ने, तोहफे के लिए अल्लाह ने महबूब को लामकां पे बुलाया, और महबूब के हाथों से भेजा। अल्लाह की मोहब्बत तो देखो, महबूब के हाथों से भेजा, महबूब तुम जा रहे हो ना, मेरे बंदों के लिए तोहफा लेकर के जाओ। अल्लाह तोहफा दे रहा है, अल्लाह तोहफा दे रहा है, अल्लाह तोहफा दे रहा है। कलम के तोहफे पर गुरूर और कमेंट करने वालों, अमीनुल कादरी की कलम उसने मुझे तोहफे में दी, इतर की बोतल, एक इतर की बोतल दी, लोग संभाल के रखते, इतना लगाते भी नहीं है। ओ अल्लाह के बंदों, कहाँ हो? मर के अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? ये अमीनुल कादरी तुम्हारी कब्र में नहीं आने वाला, इसको तो खबर भी नहीं होगी कि तुम मरोगे। हाँ, बल्कि सच्ची बात कह दूं, कब्र में अंदर क्या आएगा भाई, जनाजे में नहीं आएगा, जनाजे में। क्या बात करता? मुसलमान बनो वो मुसलमान जो रसूलुल्लाह बनाने आए थे। अपनी तबीयत के मुसलमान मत बनो, अपनी मर्जी के मुसलमान मत बनो। याद रखो, अल्लाह ने तोहफा भेजा, अल्लाह ने तोहफा कौन किसको देता है भाई? जिससे प्यार करता है। और तोहफा किस किन हाथों से दिया? जिब्रील के जरिए से नहीं भेजा, फरिश्ते के जरिए से नहीं भेजा। प्यार कितना करता है तुमसे और मुझसे, एहसास कर लो कितना प्यार करता है। सबका प्यार का एहसास करने वालों, एहसास कर लो कितना प्यार करता है। महबूब से कहा, महबूब आप जा रहे हो ना जमीन पे, मेरी तरफ से तोहफा लेके जाओ, और मेरे बंदों को ये तोहफा पेश कर देना। पीर के तोहफे की तुम्हें इज्जत है, फकीर के तोहफे की इज्जत। मेरे एक दोस्त ने कहा, अजमेर शरीफ में एक अजनबी फकीर मिला था, उसने पत्थर दे दिया, मैंने आज तक संभाल के रखा। मैंने कहा तुझे सलाम है, कितनी इज्जत की। अल्लाह ने दिया ना तुझे तोहफा, पत्थर नहीं दिया, नमाज सजदा दिया। बोलो अल्लाह के तोहफे की कदर कर रहे हो? किस किसने अल्लाह के तोहफे को सीने से लगाया है? किस किसने अल्लाह के तोहफे को पीठ के पीछे फेंक दिया है? किस किसने अल्लाह के तोहफे को पीठ के पीछे फेंक दिया? बताओ मुसलमान हो तुम? कितने हो जो इशा पढ़ करके इस महफिल में आए हो, और कितने हो जाकर के फजर पढ़ोगे? जो अल्लाह के तोहफे की इज्जत ना करे, वो कैसा मुसलमान है? बताओ बताओ। अल्लाह की यही इज्जत है, अल्लाह से यही प्यार है, अल्लाह से यही मोहब्बत है? नहीं। होश के नाखून लो,
मरोगे कोई नहीं आएगा, कोई कोई नहीं नहीं आएगा। आएगा। अल्लाह ही अल्लाह की रहमत काम आएगी, उसके महबूब रहमतुल लिल आलमीन काम आएंगे। न माँ काम आएगी, न बाप काम आएगा, न भाई काम आएगा। आज जिस अल्लाह के साथ तुम गद्दारी कर रहे हो, बेवफाई कर रहे हो, अरे हम लोग तो उल्टा तुमसे नजराने लेकर जाते हैं। सच्ची बात कर जाऊं, हम तो तुमसे नजराने उल्टा लेकर जाते हैं, लेकिन अल्लाह तुमसे नजराने लेता नहीं है। अल्लाह सही तुम्हें बात देता है, बेशक हक रोजी है। देता है, रिस्क देता है, सांसें देता है। डॉक्टर 8 घंटे ऑक्सीजन दे दे तो लंबा चौड़ा बिल देता है। पैदा होने से लेके मौत तक अल्लाह तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा है। कभी बिल आया तुम्हारे घर पे? ये नाक उसने बनाई, ये सर उसने बनाए, ये कान उसने बनाए, ये जवानी उसने दी। माँ के पेट में खूबसूरत शक्ल उसने बनाई। अगर चूहा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर बना देता, अल्लाह से लड़ने जाते, अल्लाह से सवाल करते, कौन क्या कर लेता अल्लाह का? अल्लाह उस समझ, वो बेनियाज है, उसने सुअर नहीं बनाया, उसने कुत्ता बेशक नहीं बनाया, उसने बेशक चूहा नहीं बनाया, उसने चिपकली नहीं बनाया। इंसान बनाया इंसान, और इंसान बनाकर भी फिरौन नहीं बनाया, नमरूद नहीं बनाया, हमान नहीं बनाया। इंसान बनाकर भी मुशरिक नहीं बनाया, काफिर नहीं बनाया, मोमिन बनाया। मोमिन भी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का मोमिन नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम का मोमिन नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम का मोमिन नहीं। मोमिन भी बनाया तो किसकी कौम का? सैयदुल सुभान अंबिया की अल्लाह। कौम का, हुजूर की उम्मत का। इतने एहसानात, सिला क्या? गद्दारी, वाह वाह। बेवफाई, बेवफाई। इसीलिए जलसे रखते हो कि जलसे में रात भर बैठोगे, सुबह उठकर फिर अल्लाह से बेवफाई करोगे। अल्लाह के तोहफे की क्या कदर है बताओ? बहुत माफी के साथ, अगर अल्लाह के तोहफे की इज्जत नहीं करे, उसको पीठ के पीछे फेंक दिया है, अल्लाह तुम्हें जहन्नम में फेंक देगा। कोई नहीं बचा पाए, कोई नहीं बचा पाएगा। बेशक खुदा के लिए रहम कर लो, अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। पहाड़ भी पिघल जाएंगे, पहाड़, जहन्नम में पहाड़। अल्लाह कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। आज जिंदगी है, इस जलसे में किसी फकीर की सदा पर सुधर जाओ, तौबा कर लो। तो नाजरीन, आप लोगों को ये बयान जो है कैसी लगी? यकीनन जो है सैयद साहब जो बोले हैं, हमें उस पे जो है उस चीज़ को जो है अमल करनी चाहिए। आखिरत को हम सबों को फिक्र करनी चाहिए, और जो है आखिरत की हम सबों को जो है तैयारी करनी चाहिए। ये दुनिया जो है 4 दिन की जो है दुनिया है, या आखिरत ही हमेशा के लिए ज़िंदगी है, और हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। आज हम लोग जो है पीर के पीछे पड़े हैं। यकीनन पीर से मोहब्बत करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। पीर से मोहब्बत करना भी समझ लीजिए कि ईमान की अलामत है। मोहब्बत किसी इंसान से, जब जो है एक मोमिन से मोहब्बत करते हैं, तो ये पीर साहब जो है उनसे भी मोहब्बत रखनी चाहिए। तो ऐसी मोहब्बत ना हो कि जो है हमारी जो है ऐसे पीर ना हो जो नमाज ही ना पढ़ता हो, जो 3-3 4-4 अंगूठी जो है हाथ में पहना हो, वो कभी पीर नहीं हो सकता। जो शरीयत के खिलाफ हो, वो कभी पीर नहीं हो सकता है। और हमें ऐसी पीरों से मुरीद होनी चाहिए जो नमाजी भी हो, मुत्तकी भी हो, परहेजगार हो। ऐसे पीर से हमें जो है मुरीद होनी चाहिए, और जो है ऐसे पीर से बचनी चाहिए जो 3-4 अंगूठी पहनता हो, नमाज का पाबंद ना हो, शरीयत के खिलाफ काम करता हो। और पीरों से, सैयद अमीनुल कादरी के कहने का मतलब यह है कि पीर से मोहब्बत करो, पीर के साथ साथ, मोहब्बत के साथ साथ माँ बाप के साथ भी हुस्न सुलूक करो, माँ बाप के साथ भी मोहब्बत करो, और माँ बाप के साथ जो है अच्छे तरीके से, अच्छे सुलूक से पेश आओ माँ बाप के साथ। और पीर से भी मोहब्बत करो, नमाज को भी कायम करो। और रमजान का अभी महीना चल रहा है, रमजान के महीने में रोजे रखो, और जब भी रमजान का महीना हमें मिले उसमें रोजे रखो। तो सैयद अमीनुल कादरी के कहने का मतलब यह है कि पीर की मोहब्बत बाद में, पहले माँ बाप की मोहब्बत पहले है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पहले है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो रास्ता बताया, हमें जिस पे चलने का अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, उस पे चलो। और उसके बाद जो है पीर से मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत के बाद पीर साहब से मोहब्बत करो। ऐसा नहीं कि माँ बाप से मोहब्बत ही नहीं है और माँ बाप के साथ तो हुस्न सलूक से पेश नहीं आते हैं और पीर के पीछे पड़े हैं। कोई भी पीर जो है जब तक माँ बाप का खिदमत गुजार नहीं बनेंगे, माँ बाप को नाराज रखेंगे, और पीर से मोहब्बत करके और पीर किसी की दुआ लेके कोई भी जो है
जन्नत में नहीं जा सकता कि पीर की दुआओं से जन्नत में चला जाएगा और माँ बाप इधर नाराज है। पहले हमें चाहिए कि माँ बाप को भी राजी रखें, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म माने, कुरान पे हमें जिस तरीके से चलने का हुक्म दिया है उस तरीके पे चलें, और उसके बाद पीर से भी मोहब्बत करें। यकीनन अगर माँ बाप भी राजी है तो पीर की भी दुआ कबूल होगी। माँ बाप नाराज हैं, अल्लाह और उसके रसूल नाराज हैं, तो कोई भी पीर की दुआ कबूल नहीं होगी, कोई भी पीर जो है जन्नत में नहीं ले जा सकता है। तो हमें चाहिए कि हमें इन सब बातों पर जो सैयद साहब बताए हमें इन पर अमल करने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए और शरीयत मुतहरा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं एक अगले बयान के साथ या अगले नात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।